Hello and welcome to all the dignitaries and dear students. During the present situation of COVID-19 pandemic, Department of Botany is committed towards the well-being of our students. We are celebrating the World Students Day, and on this occasion, we are launching YouTube channel of Department of Botany, Manohar Bhai Patel College, Sakoli, and also we are inaugurating the Botanical Society today. The chief guest of today's function is Dr. Amol Nande sir, Assistant Professor of Physics, Guru Nanak College, Ballarsha, and Dr. H.R. Trivedi, Honorable Principal of our college, will preside over the function. Under the banner of Botanical Society, we will conduct different activities in online mode. So, through our YouTube channel, we will try to reach our every student. 15th October, World Student Day is celebrated on the birth anniversary of former President Dr. APJ Abdul Kalam sir. He was popularly known as Missile Man of India and contributed as an Indian aerospace scientist. To honor and mark the importance of India's 11th President Dr. Kalam sir, in 2010, the United Nations Organization has declared his birthday to be celebrated as World Students Day. Kalam Sahab wrote several books including his biography Wings of Fire and ignited the youth's minds by motivating and inspiring them. He was awarded with several prestigious awards such as Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, etc. I request Dr. H.R. Trivedi, Honorable Principal of our college and President of today's function, to enlighten the knowledge of our students on this occasion and also declare the formal inauguration of Botanical Society. Dr. H.R. Trivedi sir. Good morning friends. Today, on a very special day, the Department of Botany is going to inaugurate its Botanical Society. Today is the birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam, the 11th President and Missile Man of India. He said that the success comes through the knowledge, and hence his birth anniversary celebrated as Vachan Prerna Divas. On this day, the team of Botany Department, especially Professor Amit Jagia, Head of the Department of Botany, Dr. Kushal Vorkar, and the student office bearers of this Botanical Society will carry out the good quality of programs under this platform on online mode and offline mode. I wish all the best to the team to conduct a good quality of programs. Again, I hereby declare that this Botanical Society is inaugurated, and wishing once again, I wind up my best wishes. Thank you very much. Thank you, sir, for the valuable words, your constant support and encouragement. Hello dear students, this is Amit Jagia, Head, Department of Botany, M.B. Patel College, Sakoli. On the memorable occasion of Dr. APJ Abdul Kalam's birthday, which is also celebrated as World Students Day, I will assure my dear students that we will try to provide all the online platforms through which you can expose your hidden talents, and all the extracurricular activities will be undertaken with the help of this Botanical Society banner. प्रोग्राम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए सर अब्दुल कलाम जी का एक बहुत ही सुंदर वाक़या है और मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि उससे आपको काफ़ी प्रेरणा भी मिलेगी। ये 1979 की बात है, जब एक SLV-3 का एरोस्पेस मिशन चल रहा था और वो एक बहुत ही बड़े फेल्यूर को उसने एक्सपोज किया। ये जो ह्यूज फेल्यूर था, ये बहुत ही धक्कादायक था, एक बहुत बड़ा झटका था एरोस्पेस मिशन को। तो श्री अब्दुल कलाम जी ने ये खुद स्टेटमेंट दिया है
कि वी एन्जॉय द सक्सेस बट हाउ टू मैनेज द फेल्यूर इज़ एन ट्रेमेंडसली टीडियस जॉब. सो जब वो फेल्यूर हुआ, जब वो मिशन फेल हुआ, नाउ सी कलाम सर वॉज द प्रोजेक्ट मैनेजर. अब्दुल कलाम सर एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे और वो जिनके अंडर में काम कर रहे थे, जो चीफ़ थे इसरो के, उन चीफ़ का नाम था सतीश धवन. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर द फेल्यूर ऑफ दिस SLV-3 मिशन, सतीश धवन ने अब्दुल कलाम साहब से कहा कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए. प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सतीश धवन ने खुद लीड किया. उन्होंने कलाम साहब को कहा कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये मैं लीड करूँगा, और लीड करने के बाद ही टुक ऑल द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ. उस फेल्यूर का सारा जिम्मा उन्होंने अपने सर ले लिया. ये एक बहुत बड़ी बात थी. एंड दिस इज़ व्हाट अब्दुल कलाम सेज अ लीडरशिप क्वालिटी. फेल्यूर ही टेक, सक्सेस ही गिव. करीब 10 साल के बाद इस मिशन को एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला. जब ये मिशन सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद फिर से सतीश धवन ने, जो इसरो के चीफ थे, उन्होंने कहा कि कलाम साहब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए. 10 साल के बाद वो जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई. और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तब सतीश धवन साहब ने कलाम साहब से कहा कि आज ये कॉन्फ्रेंस आप लीड कीजिए, क्योंकि इस सक्सेस के रिस्पॉन्सिबल आप हो, ये सक्सेस आपकी वजह से है. सो ये जो लीडरशिप क्वालिटी होती है ये बहुत बड़ी चीज़ है. मतलब आज उन्होंने दूसरों की गलती अपने सर ली. हम लोग अपनी गलती भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज़ व्हाट द लीडरशिप क्वालिटी इज़. तो ये चीज़ हमको सीखनी चाहिए. उनके छोटे छोटे वाक्य हैं, बहुत सारे ऐसे प्यारे किस्से हैं जिनसे हमको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर. आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर अमोल नांदे सर, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं. हमने साथ में हॉस्टल लाइफ बिताया है हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान. कहने को तो ये मुझसे 1 साल जूनियर हैं, बट हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं. थोड़ा जर्नी हमारा अलग हो गया. अमोल नांदे सर ने नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद रिसर्च को चुना और मैंने टीचिंग को. रिसर्च करने के बाद उन्होंने वापस एकेडमिक्स में अपने कदम रखे, और उन्होंने जहाँ भी अपने कदम रखे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात हो, चाहे रिसर्च की बात हो, IIT का सफ़र हो, चाहे न्यूजीलैंड में उनका PhD का सफ़र हो, उन्होंने हर रोल को बखूबी निभाया है. और आज हम यही जर्नी उनसे उनकी ज़ुबानी सुनने वाले हैं. मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इससे बहुत बहुत खुशी मिलेगी, बहुत प्रेरणा मिलेगी, और ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा आपके लिए. सो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अभी आगे का जो जर्नी है, आगे का जो डिस्कशन है, एक शॉर्ट इंटरव्यू के फॉर्म में. सो वी विल टेक अ इंटरव्यू विद Dr. Amol Nande sir, and we will enjoy the interesting journey of him. Okay. So dear Amol sir, please explain your journey from your education life to the research and academic life. Hello friends, you are going to be with me and Amit sir for next 10 to 15 minutes or even plus minus 5 minutes more. So try to bear with me. मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, ज़्यादा नॉलेज की बातें नहीं बताऊँगा. वी विल ट्राई टू बी लिटिल बिट फ्रेंडली सो दैट यू वोंट गेट बोर नहीं हो आप. नहीं तो आपने अभी तक बहुत सारे कंटिन्यूस टॉक्स देखे जो मैं नहीं बोलता बोर है, लेकिन वो कैसे कि थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाता है. अपन ट्राई करेंगे कि जितना फ्रेंडली रह सके उतना. सब कुछ शुरू करने के पहले आई वुड रियली थैंक टू Amit Jagia sir for such a wonderful introduction, and most importantly providing me opportunity to interact with all you guys. So alright, so as sir said, so I am Dr. Amol Nande. I am working in Guru Nanak College of Balla Shah, which is also called as Ballarpur. You guys very well know that it is a place where that demo train ends, stations of last station of your demo train. All right. So he asked me how about my education life and research life. So my education life, I considered that it started towards research from my BSc. क्योंकि उसके पहले एक नॉर्मल किड की तरह मेरी भी इच्छाएं थी
कि आई शुड गो फॉर इंजीनियरिंग, नॉट मेडिकल। मुझे काटना वाटना पसंद नहीं है, वो फ्यूचर जॉब लगता है मुझे, तो वो उसी के लिए ठीक है कि जिनके इसमें वो, लेकिन ड्यू टू सर्टन अनअवॉइडेबल रीजन आई कुडंट गेट देयर। तो मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, 2 महीने एडमिशन गया नहीं कॉलेज, वो डेपो में था कि नहीं यार कहाँ से कहाँ फंस गया। देन आई केम टू मीट माई वंडरफुल ग्रुप ऑफ पीपल जो मेरे साथ अभी भी कांटेक्ट में है, टच में है। तो उनके साथ जब अटैचमेंट हुआ, सो आई स्टार्टेड एंजॉइंग माई ग्रेजुएशन लाइफ। उसके बाद हमने मस्ती वस्ती सब कुछ किया, और उसके बाद आप इमेजिन करो कि आज भी, मतलब मुझे ग्रेजुएशन होके 15 साल हो गया, और आज भी अगर जब भी हम कॉलेज में जाते हैं, हम 6-7 दोस्त लोग हैं, तो अभी भी हमारे पूरे कॉलेज के लोग, यानी जो लेक्चरर्स या टीचर स्टाफ है हमारा, वो हमको नाम से जानता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ओनली स्टूडेंट्स लोगों को तो नाम से नहीं जाना जाता। पढ़ाई के साथ साथ हमने काफ़ी एंजॉयमेंट और मस्ती भी की है। ऑलराइट, सो ये तो हो गया एक पार्ट ऑफ द लाइफ। उसके बाद अराउंड 2005 आई थिंक अगस्त या सितंबर में, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड नितिन लोनगाड़गे, हमने डिसाइड किया कि चलो एमएससी करते, वो भी नागपुर से। एंड वी fill up the form, we took one bag and we jumped on the bus to reach the Nagpur। हमारे एक दोस्त के घर में रुके, उसने इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से केमिस्ट्री में एमएससी किया, वहाँ पे एडमिशन लेके, और मैंने कैंपस में से फिजिक्स में सीखा। आई वांटेड टू डू एमएससी इन आइदर इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स, सो अल्टीमेटली आई सिलेक्टेड टू डू इन फिजिक्स। ऑलराइट, सो पहले इसमें से, मतलब फर्स्ट ईयर में से मुझे ऐसा क्रेज था कि कुछ थोड़ा सा अलग किया जाए। मुझे गेट नेट एग्जाम में क्या सिलेबस होता है, एग्जामिनेशंस क्या है, वो पता नहीं था, लेकिन आई वांट टू अपीयर फॉर दैट एग्जाम। और मुझे ये नहीं करना था कि किसको अच्छे से करना है या नहीं, मुझे लगता था कि मैं खुद पास हूँ, बाकी हो या ना हो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मैं पास हो जाऊँ। और उसके हिसाब से मैंने इवन अमित सर को पता है, ही वॉज विथ मी इन माई एमएससी टाइम। सो तब हमको, मैं हमेशा वो बड़े बड़े बुक्स लेके आता था, पढ़े नहीं ज़्यादा उस पीरियड में, लेकिन वो हमेशा साथ में रखता था की चला बा याला वाचून तरी बघून तरी आपल्याला मोटिवेशन मिळेल. And that's how we started to think about research, and ultimately I get here. क्योंकि देखो हमेशा मेरा बायोलॉजी नहीं, लेकिन डार्विन की एक सेंटेंस मुझे हमेशा पसंद है. डार्विन का फेमस सेंटेंस क्या है? वही प्रजाति सस्टेन होती कि जो एडॉप्ट करती है सिचुएशन. स्ट्रॉन्गेस्ट प्रजाति कभी भी सस्टेन नहीं होती. अदरवाइज आज भी डायनासोर होते थे, आज भी वेल को अपन मार के नहीं खाते थे, या फिर आज टाइगर की संख्या कम नहीं होती. These are the strongest species. आप शेर के सामने खड़े नहीं रह सकते, लेकिन उन्होंने एडॉप्शन नहीं किया. उन्होंने समय, वक्त या फिर एनवायरमेंट के साथ एडॉप्शन नहीं किया. You know the final result. I won't go into there. So that's how I see. So it doesn't matter how you get into field. Means आपकी choice है नहीं है. That's completely your luck. बोलो आप कहाँ पैदा हुए, किसके घर में पैदा हुए, अभी बीएससी में कहा हो, आपके लाइफ कंट्रोल में नहीं है. लेकिन इसके बाद अगर आपने अडॉप्ट करके कुछ किया नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आप सर्वाइव कर सकते. आपकी जर्नी इतनी सक्सेसफुल या लॉन्ग नहीं हो सकती. तो दिस इज लाइक माय स्मॉल एंड स्वीट आंसर फॉर अभी सर फर्स्ट. Sir, who is your source of inspiration? All right, that's a wonderful question, sir. Source of inspiration. So in my life, I meet several people, who inspired me, who taught me in my day-to-day life how to behave with people, how to control on my temper. मैं बहुत गुस्से वाला था. हम सब काफ़ी अच्छे से जानते हैं. आपके जो फिजिक्स पे
सर है, विजय सर, वो तो मेरे साथ रूममेट थे, तो हमने काफ़ी समय लॉन्ग टाइम साथ में बिताया। तो ड्यूरिंग दैट टाइम वो जोश, वो कंट्रोल करना, उसके लिए काफ़ी इंस्पिरेशन पीपल आपकी इसमें चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो मोस्ट ऑफ द थिंग, जो मुझे सबसे बड़ा लेसन बोलो या जो लोग मिले कि जिन्होंने मुझे बताया क्या नहीं करना चाहिए, करने के लिए बिंदास जाओ, या यू नीड नॉट टू बी स्केयर्ड टू सिचुएशन। आपको किसी चीज़ से, किसी परिस्थिति से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो पढ़ाने वाले लोग जो है वो मुझे हमारे लोअर हॉस्टल में ही मिले, जहाँ पे हमने काफ़ी समय बिताया था। द 2 or 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। वहाँ पे क्या था, हमारे वक्त ये ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन है कि वहाँ पे काफ़ी लोग मतलब 10-10, 12-12 साल से रह रहे थे। तो वहाँ से मैंने हॉस्टल से एक चीज़ सीखा कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो जितनी जल्दी हो सके वो जगह छोड़ो। वो सबसे बड़ा लेसन था मेरे लाइफ का, क्योंकि जब आप एक रूटीन लाइफ जीते हो तो आपको समय कैसे जाता है पता नहीं। अगर आप देखो, जो अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हो, आप रियलाइज नहीं करोगे आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने का। जैसे दिवाली वैकेशंस हो जाएंगे, आप कॉलेज में आओगे, आपका सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम चालू हो जाए और देखते देखते आपकी डिग्री खत्म हो जाए। तो टाइम जो है वो कभी किसी के लिए रुकता नहीं, और जैसे आपने सिचुएशन अडॉप्ट कर लिया तो वो आपको कहीं बढ़ने नहीं देता। ये जो चीज़ है, ये चीज़ मैंने काफ़ी हद तक हॉस्टल से सीखी। ये एडॉप्शन जो है वो अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज़ की आदत मत लगे। अगर आपको आदत लग गई तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अवे विद दैट हैबिट। उसके बाद आई वुड रियली लाइक टू मेंशन माय फ्रेंड्स सराउंडेड लाइक विजय सर, अमित सर, and the most important personality in my life who actually helped me, inspire me is प्रदीप रोहनकर सर, जो अभी दुबई में है, अबू धाबी में जाकर, कि जिन्होंने मुझे बोला था, उनका स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है। when I was going for preparation for GATE and NET to हैदराबाद, तो that time उन्होंने बोला था अगर if you are going there तो बिंदास होके जाओ, you need not to be think about money, you need not to be think about result, you need not to change your versatile lifestyle। मतलब अगर आप पिक्चर देखने जा रहे हो, वहाँ पे जाके बोलोगे कि नहीं आई एम हियर फॉर एग्जामिनेशन और दिन रात पढ़ोगे, तो उन्होंने बोला था कि कैन नॉट क्रैक द एग्जाम इन दैट माइंडसेट। और वही हुआ। मतलब जो लोग मुझे अच्छे से जानते हो आप उनको पूछ सकते हो कि आई नेवर चेंज माई हैबिचुअल, आई वर्क हार्ड, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने उतना बिल्कुल चेंज करके नहीं किया कि नहीं बात दिन रात पढ़ना है। आई नेवर एक्टेड लाइक दैट। बट जो भी चीज़ है उसको एंजॉय करो, यानी जो रूटीन लाइफ है वो जियो, और उसमें से अगर आप दिन ब दिन अगर आप कुछ अच्छे से करना चाहते हो तो करो। देखो अगर आप बोलते हो कि आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो जनरली अपने बीएससी में सबसे अच्छे एग्ज़ाम माने जाते हैं आईआईटी जैम, जो पीजी के लिए या पीएचडी के लिए आपको काम में आती है। वो आपके ग्रेजुएशन के बेस पे है। तो ये भी बात मुझे एक वन ऑफ द माय सीनियर ने बोले थे, श्री कृष्णा पांडे, जब मैं आईआईटी बॉम्बे में था तब, कि देखो कि अगर कोई भी चीज़ अगर एकदम से क्रैक करनी है, निकालनी है, तो ट्राई करो कि डे बाय डे करो। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि आपने 10 क्वेश्चन हर रोज पढ़े रिगार्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डजेंट मैटर कि आईआईटी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। इफ़ यू वांट टू क्रैक आईएएस एग्जाम, उसके लिए इमेजिन करो कि आपने जो भी टॉपिक सिलेक्ट किए उसमें से 10 क्वेश्चन पढ़े, तो विद इन 1 मंथ यू रेड 30 क्वेश्चन। और अगर आपने हर रोज एक क्वेश्चन बढ़ाया तो आपका एंड में कितना हो जाता है, 330 क्वेश्चन हो जाता है। मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन बात कर रहा हूँ जो डायरेक्ट बीट में आप 10 मिनट में पढ़ सकते हैं। इमेजिन करो कि आपने 10 की जगह पे 1 घंटा पढ़ाई की और आपने लगभग 50 क्वेश्चन लिए, तो एट द एंड ऑफ मंथ 1500 क्वेश्चन। और 10 महीने के बाद, कैलकुलेशन के लिए 10 महीना इजी है, इसके लिए कर रहा हूँ मैं, 15,000 क्वेश्चन, और 1 साल में आपके मोर देन 18,000 क्वेश्चन आप रीड करो।
18,000 क्वेश्चन इज नॉट अ जोक। अगर पढ़ना चाहते हो तो एक दिन में आप पैसे भी नहीं पढ़ सकते। तो डे बाय डे अगर आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हो तो आपको फायदा होता रहता। अनदर कोट विच रियली मोटिवेट मी, और अभी भी अगर आप मेरे घर में आके मेरे वॉल पे देखोगे तो वो कोट अभी भी है। वन ऑफ माई फ्रेंड सेंड मी दैट कोट, लाइक यू नो व्हेन आई वाज इन वेरी डिप्रेस्ड मोड। सो उन्होंने भेजा था कि अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल यू रीच टू योर गोल, और गोल इज रीच्ड। That quote is said by or profound by Swami Vivekananda, which really boosts me. Means you need not to show to someone कि आपको किसी को दिखाना नहीं कि मैंने आज पढ़ाई किया। आपको खुद उठना है कि नहीं आज मुझे कुछ करना है, पढ़ना है या whatever। और मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि पढ़ाई is only about books related to your topics. Read something that you motivate। और आजकल तो इसमें सोशल मीडिया में अपन सबसे ज्यादा करते हैं, अपन खुद नहीं सिर्फ आए हुए मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। मेरे बहुत से दोस्त लग करते हैं, समटाइम्स आई कमेंट, समटाइम्स आई जस्ट लीव इट, बट आप उसमें एक्चुअली कुछ नहीं कर पाते। अगर सही में कोई भी चीज का रिवॉल्यूशन लाना है खुद में, खुद के करियर में या समाज में, तो आप पहले खुद करो, तभी आप उसमें रहोगे। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो ड्यूरिंग माई एजुकेशन टाइम और ड्यूरिंग माई career time I came to know, I understand their meaning, and I think that's my inspiration source for rest of my career. Dear Amol sir, please share the glimpses of hostel life and struggle for cracking the toughest competitive exams like IIT entrances, NET JRF, GATE exams, and so on. There are many exams are in your account. Actually, preparing or taking that decision to prepare for GATE, NET, especially I was interested in GATE examination. I know that I have seen videos that time about lifestyle of IIT, and somehow I got fascinated. I didn't know how I can get there, which course I will join, should I join PhD और MTech। तो मुझे वो लाइफ काफ़ी पसंद है। मैंने IIT बॉम्बे का मूड इंडिगो करके उनका एनुअल फेस्ट होता है जो अपने यहाँ पे गैदरिंग होता है, वैसे उसके वीडियोस देखे थे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे यूट्यूब पे। तब यूट्यूब पे 10 मिनट का वीडियो देखने के लिए आपको आधा घंटा राह देखना पड़ता था, बफर काफ़ी होता था। हमारे जो पुराने दोस्त है आपके जनरेशन के हिसाब से म्हातारे लोग, तुम्ही त्यांना विचारू शकता की एक व्हिडिओ बफरवाला किती वेळ लागायचा। सो दॅट टाइम आय थॉट ओके इट कुड बी अ गुड लाइफ टू गो देयर। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन हमारा MSc फर्स्ट ईयर काफ़ी लोगों का बैक रहा। मेरे लिए वो थोड़ा सा फायदेमंद भी रहा क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम माय फादर मेट एन एक्सीडेंट एंड आई वांटेड टू बी एट होम, और ये बैक आ गए। तो वो सिचुएशन में मुझे लगा था कि मैं कभी एग्जामिनेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो लोग थे हमारे सराउंडिंग, उन्होंने हमको इस कदर टॉर्चर किया, पॉजिटिवली लिया मैंने। तो उसके हिसाब से मैंने बोला कि नहीं यार चलो एक शॉट तो बनता है कि ऑल्दो आई गॉट लाइक whatever percentage I needed, लेकिन that time 3-4 people I still remember me, Vijay sir, Yadav sir, who is in DB Science now, Sudhir sir, and we get like another 2 or 3 Maharashtrian people. But हम 3 जन, स्पेशली यादव, मैं और विजय, बैग पकड़े, कुछ पता नहीं कहाँ पे क्लासेस है क्या है, सिर्फ इतना पता था कि हैदराबाद में कहीं तो भी क्लासेस है। And I think Sudhir also joined, but I do not remember exactly because Yadav, मैं और विजय ने काफ़ी समय साथ बिताया। So हम ट्रेन पे बैठे गए, हमको कुछ नहीं पता था कि हैदराबाद, उसके पहले कभी नहीं गए थे हैदराबाद। और वहाँ पे दिलसुख नगर में एक पुलिया है, फ्लाईओवर है, फुटपाथ
जो लोग बाय वॉक जाते हैं उनको क्रॉस करने के लिए। उसके नीचे हमने बैग्स रखे और एक एक जन जाके मोटेल्स होटल्स या कोई रूम भाड़े से मिलती है क्या वो सर्च की। एंड ड्यूरिंग रीचिंग टू दिलसुख नगर फ्रॉम सिकंदराबाद रेल्वे स्टेशन वी सॉ दॅट ॲड इथे वहाँ पे मराठीमध्ये कोट करतो मी की नेट आणि गेटचे क्लासेस होतात। इट इज रिटन इन इंग्लिश एंड तेलुगु। तो हमने बोला कि लेट्स गिव इट अ चांस और वी डिस्कवर दैट इंस्टीट्यूट इज क्वाइट बेटर। सो वहाँ से हमारा जो मेन मोटिवेशन है नेट और गेट का वो हमको कहीं ना कहीं लगा कि हम उसको अभी अचीव कर सकते हैं। और लकीली जो 3 लोगों का नाम लिया मैंने वो काफ़ी अच्छे से वो अचीव किए। तो तब हमने देखा कि वहाँ पे बहुत से लोग जो अपने महाराष्ट्रियन लोग वापस चले जाते वो किसके लिए वापस चले जाते हैं, खाने की वजह से। तो अगेन डार्विन का जो पहला क्वेश्चन है, पहला कोट मैंने बोला था पहले क्वेश्चन के बाद कि अगर आपने कोई सिचुएशन को एडॉप्ट नहीं की है तो आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुली नहीं जा सकते। तो वो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे से सीखने को मिला कि जो भी सर्कमस्टांसेस है उसको अवॉइड करो। उसके बाद मैं ये नहीं बोलूँगा कि फाइनेंशियली वीक थे वगैरह वगैरह। वो हमारे पेरेंट्स को पता है कि हम फाइनेंशियली वीक थे या नहीं थे। हमको तो इतना पता है कि हमारे पेरेंट्स इनफ अमाउंट ऑफ मनी देते थे। हमको उस ज़माने में कोई शौक पानी था नहीं, तो हमारा जो चाय वाय नाश्ता खाना निकल जाता था और बाकी पैसों चीज़ों के लिए हमको उतना पैसा लगता भी नहीं। तो मनी प्रॉब्लम उतना हमने फेस नहीं की है, लेकिन जो चीज़ें मोटिवेट है वो हमको की। वहाँ पे हमको प्लेटफॉर्म मिला कि एग्ज़ाम क्या होती है, कैसे उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, कौन सी चीज़ें होती है कि जो अपन अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, कौन से टॉपिक पढ़ना है। वो मोटिवेट किए कि IIT का जो पिक्चर हमने देखा था क्या वो सही में फिजिबल है, हम उसको ले सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। नेट अगर क्रैक करना है तो नेट जनरली लेक्चरशिप के लिए बहुत लोगों को पता है। उसके अलावा उसमें अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, जेस्ट एग्जामिनेशन क्या है, वो जो चीज़ों का एक्सपोजर है वो हमको वहाँ पे मिला। उसके साथ साथ हमको लाइफ का सबसे बड़ा लेसन मिला कि देखो सिचुएशन कोई भी हो, जो पढ़ना चाहता है पढ़े, क्योंकि हमको आज भी हमारे सभी चीज़ें पता है। हमने किस हिसाब से देखे क्या देखे, एकदम से जाके करना। वहाँ पे जिस हॉस्टल पे हम रहते थे सिर्फ हम 4-5 लोग ही पढ़ने वाले थे, बाकी सब जॉब वाले थे। वो सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड उसमें से ओवरकम होके कैसे अपने करियर के लिए मोटिवेट होना, जो चीज़ अपने को चाहिए उसके ऊपर कैसे फोकस करना, वो हमको उस पीरियड ने सिखाया। उसके अलावा आई स्टिल रिमेंबर द ओनर ऑफ आवर हॉस्टल, they are like very good persons, means they knew that we came here only for preparation, so they give us special attention। means अगर खाना बनता है तो हमारे लिए नॉनवेज सेव करके रखना, अच्छे से हमने दही मांगा तो हमको गाढ़ा दे देना। सो दिस इज लाइक स्मॉल थिंग्स। दोज दैट टाइम हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन आज वही चीज़ें जो याद रहती है, वही दोस्ती है, हमने जो मस्ती की है वो। One of my good friend Lashmi Manta actually, I thought that she won't come into my this interview जब मुझे बुलाया गया था, लेकिन yesterday उसका फोन आया and I remember कि हमारे जो फॉर्म वगैरह भरने होते थे, क्योंकि हमको हैदराबाद पता नहीं था, लैंग्वेज प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा था, and she is compatible with Hindi as well as Telugu। तो वो हम 4 लोगों के गेट के फॉर्म, नेट के फॉर्म भरने मतलब वहाँ से पोस्ट ऑफिस से लेके आना, फिलअप करना और बाद में फिर से सेंड करना, तो वो सब काम उसने तब हमको हेल्प किया। दैट टाइम आई एक्चुअली वी रियली डिडंट रियलाइज हाउ क्रूशियल दोज एफर्ट्स वाज, बट आज हमको पता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें ही है कि जो आपको सर्वाइव रखती है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आई एंजॉय, मीन्स मेरा तो वो तो नेचर है, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ मुझे अच्छा लगता है कि वो सिचुएशन में अडॉप्ट करके जितना अच्छे से अपन जी सके जी। तो इट वाज लाइक वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी।
एंड वहाँ से मेरी लाइफ जो है वो चेंज हुई। अगर मैं नागपुर में रहता था, मैं नहीं बोलता कि मैं एग्ज़ाम क्रैक करता था या नहीं करता था। अगर मैं एग्ज़ाम क्रैक भी कर लेता था तो भी जो उतने एम मोटे मोटिवेशनल एम चाहिए रहते थे कि IIT में जाके फॉर्म भरना, उसमें जाके इंटरव्यू को अपीयर होना, वो कॉन्फिडेंस जहाँ तक मुझे नहीं आता था, जो मुझे यहाँ पे आने के बाद जब मैं 4 लोगों को मिला, तो इट वॉज लाइक वंडरफुल एक्सपीरियंस। देयर आर हिप्स एंड डाउन, बट यू नो आई एंजॉय दैट। Sir, how was your research journey from IIT to New Zealand, and what make you to play the role of teacher after your research? Actually, it is a very interesting question. और इसकी वजह से ये वाला जो IIT छोड़ के न्यूजीलैंड जाने का डिसीजन, जो ट्रांजिशन पीरियड था जब मैं बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहा था, मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे गाली दिए थे। फैमिली ने नहीं दी थी क्योंकि मेरे फैमिली को पता ही नहीं था कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। इनफैक्ट मैंने मेरे फॅमिली को न्यूझीलंड में जाने के बाद बताया की मम्मी डॅडी मतलब आई बाबा मी सगळं सोडलं IIT बॉम्बे, आता मी 4 वर्षासाठी न्यूझीलंडला राहणार। तो दॅट वॉज लाइक बूम फॉर देम। पर जर्नी जैसे मैंने IIT बॉम्बे ज्वाइन किया, आई स्टार्टेड माई एंजॉइंग लाइफ। उसका सबसे बड़ा प्रूफ था मेरा वेट। I suddenly changed from 49 kg to 92 kg। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना रिलैक्स हो गया हूँगा मैं IIT में जाके। काफ़ी अच्छे दोस्त मिले, लेकिन आप जहाँ पे भी नए प्लेस में जाते हो, यू स्टार्टेड फॉलोइंग वन पर्सन अननोइंगली। अगर वो पर्सन अगर अच्छा रहा तो आपका करियर सेट हो जाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद एक श्री कृष्णा पांडे करके हमारे सीनियर थे, वो काफ़ी राइस यूनिवर्सिटी से वगैरह उन्होंने पोस्ट डॉक किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने PhD छोड़ दी 1 साल बाद, और उन्होंने साउथ कोरिया में ज्वाइन किया। तो उसमें थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा कि बोला यार, जिनको अपन रोल मॉडल मानते थे, जो मुझे हर समय हेल्प करता था, वो छोड़ के चला गया। सो देन आई स्टार्टेड ओके, अगर वो अगर कर सकते तो अपन क्यों। तो हमने क्या किया कि उसके ऊपर से चालू किया कि मैं बोला कि चलो अपन कम से कम एक चीज़ तो कर सकते हैं कि एफर्ट तो दे सकते हैं। तो मैंने बोला श्री कृष्णा पांडे सर को मैंने मेल लिखा एक दिन डरते डरते कि सर मुझे IIT में मज़ा नहीं आ रहा, एवरीथिंग है यहाँ पे, अच्छे सुपरवाइजर है, सब कुछ है, लेकिन मुझे भी बाहर जाने की इच्छा है, क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका रिज्यूम सेंड करो और एक अच्छे से रिसर्च स्टेटमेंट करो। मैंने जोश में लिखा, उनको सेंड किया, उन्होंने पूरा ऐसे क्रॉस करके भेज दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये वे नहीं है, आप अप्लाई करो, कोई आपका मेल भी नहीं पड़ेगा, आपने जस्ट एक मेल कॉपी किया गूगल में से सर्च कर से वो फॉरवर्ड किया। This is not a proper way to apply for PhD outside of India when you don't have GRE and total score। तो मैंने बोला फिर ठीक है, मैं डिप्रेस हो गया। मैंने बोला कि छोड़ देता हूँ, अभी IIT मिला है, दोस्त लोग बोल रहे कि जो हमको नहीं मिला वो तुमको मिला है, क्यों छोड़ के जा रहे। तो ये सिचुएशन में मैंने बोला कि चलो यार, हैप्पी, आई एम हैप्पी। लेकिन 2 दिन बाद उनका मेल आया, उन्होंने पूरा मेरा CV रीडिज़ाइन किया, उन्होंने पूरा मेरा रिसर्च ऑफ स्टेटमेंट रीडिज़ाइन किया, और उन्होंने मुझे लिख के दिया मतलब कैसा होना चाहिए। उन्होंने बोला इसको कॉपी पेस्ट मत करो, इसके हिसाब से आप बनाओ कि मेल के अंदर क्या लिखोगे। तो वो जो था वो अगेन मैंने बोला कि मुझे हर टाइम कोई ना कोई रोल मॉडल मिला है। तो मेरी PhD से न्यूजीलैंड के जर्नी में ये सबसे बड़ा इन्होंने काफ़ी हेल्प की। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया, एक सो कॉल्ड विलेज साइड बॉय को बताया कि नहीं, उन्होंने पूछाते थे करके डाल सकते थे कि तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, यू कांट इवन टॉक गुड। आई स्टार्टेड, आई गॉट दिस एसेंट फ्रॉम न्यूजीलैंड। इसके पहले मेरी इंग्लिश सही में अच्छी नहीं थी। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि नहीं तेरे को कुछ नहीं आता, ही रिस्ट्रक्चर्ड एवरीथिंग इन मी। उन्होंने सिर्फ उस दिन रिज्यूम रिस्ट्रक्चर नहीं किया, उस दिन उन्होंने बताया कि अगर कोई आपकी तरफ
हेल्प लेके या मांगने के लिए कुछ आता है तो उनको जो जो आपकी इसमें वो दो, ना कि जो आगे वाला चाहता है उतना ही दो या फिर उससे कम दो या उससे गलतियां निकाल के छोड़। तो दैट वाज लाइक रियली गुड मोटिवेशन फॉर मी। उसके बाद मैंने अप्लाई करना चालू किया। जो भी रिप्लाई आते थे प्रोफेसर्स के मैं उनको दिखाता था। वो बोलते थे कि नहीं ये तो ठीक है लेकिन इसमें ऐसा मॉडिफिकेशन करो, ऐसा मॉडिफिकेशन करो। अब टू आई एम गेटिंग पोजीशन। उसके पहले न्यूजीलैंड के पहले मुझे यूके में मिली थी, फ्रांस में मिली थी, लेकिन वहाँ पे उतना फेलोशिप नहीं था, इसके लिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो वो सभी जगह पे उन्होंने क्या किया था, मुझे हेल्प किया था, उन्होंने गाइड किया। मैंने उनको टाइम डिफरेंस के इससे कभी कभी रात को 12 बजे उनके कोरिया में गए तब उस समय उनको फ़ोन किया है और ही पिकअप माई फोन, ही रिप्लाइड मी वेरी पोलाइटली और उन्होंने बताया कि नहीं यार अच्छे से करो। और उन्होंने बोला था कि यू शुड गो फॉर इंग्लिश कंट्री टू योर ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर आप चाहते हो तो आप कभी भी कोरिया में आ जाओ, मैं आपको मेरे प्रोफेसर से मिलके मैं डेफिनेटली फेलोशिप और अरेंज कर दूंगा। पर उन्होंने बोला कि ट्राई एफर्ट दो कि आप कुछ बाहर अच्छे कंट्री में कर सको। और लकीली my efforts paid off. I selected as a Marsden Fellow in New Zealand and I successfully completed my PhD under the supervision of Professor Simon Brown at University of Canterbury, Christchurch. So it was like very wonderful and sweet journey, and I really miss. Nowadays I didn't get chance to talk with him, but whenever there is a IIT Bombay structure came into my, someone discuss about that topic, the only person who really motivate me or help me to get there, that is like Shri Krishna Pandya. Apart from there, my good friends, there are a couple of good friends, Vijay, of course, then Swati, Dipti, and Nitin. Those who know I am actually trying for going away, leave the IIT Bombay and jump to the some other country for fellowship. They motivate me. They say, okay, let's go. Instead of they say, no, तुला IIT भेटलेला अजून काय पाहिजे. Instead of saying all those stupid phrases or depressing words, वो उन्होंने मोटिवेट किया मुझे. लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये स्टोरी तभी बनती है जब आपका एंड सक्सेसफुली होता है. अगर मैं तब अगर कहीं बाहर नहीं जाता था, ये क्वेश्चन कभी अराइज ही नहीं होता था. तो ट्राई करो कि सेल्फ मोटिवेटेड रहो. जो भी चीज़ है किसी को दिखानी नहीं है. जो आपके पास है उसका बेस्ट करने की कोशिश करो. अल्टीमेटली इट विल डिफाइन दिस. आई एम नॉट सेइंग आई एम अ वेरी बिग गाय और समथिंग. आई कुड हैव डन बेटर. और मेरे लाइफ में ऐसे लोग हैं कि जिनका रिज्यूम या जिनका CV मेरे से बेटर है. लेकिन वो कैसे कि अच्छा मैं ये मुझे आगे नहीं कैसा लगता है कि इनको नाम मेंशन करूँ. इन न्यूजीलैंड इन माय एंड टाइम आई मेट दैट गाय सौरभ घोष, इंडियन गाय, जिन्होंने IIT कानपुर से PhD किया था. उसके बाद डेनमार्क में पोस्ट डॉक्टरेट करते थे और वो अभी मेरी यूनिवर्सिटी में जहाँ से मेरा PhD हुआ है वहाँ पे फैकल्टी करते हैं. दैट पर्सन ऑल्सो वेरी डाउन टू अर्थ गाय. तो अगर मैं उसको बोलूँ कि सर मुझे आपके साथ ये चाहिए, और मैंने उनको सीरियसली देखा है कि व्हेन यू डिस्कस एनीथिंग विद एनीवन, वो उतना क्यूरियोसिटी से डिस्कस करते कि वो चीज़ मैं उनसे सीखा कि हाउ कीप योरसेल्फ काम व्हेन यू आर डिस्कसिंग विद समवन. मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो बताने से अच्छा आगे वाला क्या बताना चाहता है, क्या बात करना चाहता है, वो एक्चुअली मैंने उससे सीखा. काफ़ी अच्छे से इतना नॉलेज है, उतना पावर हाउस है, एनर्जी है. लेकिन जब भी वो डिस्कस करेंगे, अगर आपने बताया कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर बॉटनी स्टूडेंट और अगर आप उनसे डिस्कस करोगे प्लांट या बायोसिंथेसिस के बारे में, इवन फोटोसिंथेसिस के बारे में, ही विल लिसन लाइक अ चाइल्ड. जैसे उसको पता ही नहीं है, ही विल लिसन ईच एंड एवरी वर्ड यू से, ही कम्युनिकेट, ही आस्क क्वेश्चन. तो उतनी क्यूरियोसिटी उतने एक्सपीरियंस पर्सन के पास होना, दैट्स लाइक वेरी गुड. एंड अनदर द रियल पर्सन who taught me, if you work harder for 24 hours, not to show anyone, that is my supervisor Simon Brown.
जो अगर आप जो पंचुअलिटी की अगर डिफाइन करना चाहो तो मैंने आज तक मेरे लाइफ में उतना पंचुअल इंसान ने बोला कि जो बोलता है कि मुझे असाइनमेंट 12 बजे तक चाहिए एंड दैट पर्सन कम्स शार्प ऑन 12 on your desk or 2 minutes before and stand quietly to get up to 12 o'clock. So उतना पेशेंस, उतना एनर्जी एट ए टाइम 10-12 प्रोजेक्ट को हैंडल करना विदाउट एनी ट्रेस ऑफ टायर्डनेस और फेस, वो सब चीज़ें जो है वो काफ़ी उनसे मेरे पर्सनल लाइफ में सीखने को मिली. सो इट वॉज गुड एक्सपीरियंस और अल्टीमेटली जो मैंने सीखा वही मैं अभी उनको बच्चों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ. सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा ही लेता हूँ ठीक ठाक, उसके अलावा भी जो है वो करने की कोशिश कर लेता हूँ. तो सो दैट्स लिटिल बिट ग्लिम्स ऑफ टीचिंग स्टफ आई गॉट इन माई day-to-day life, and now I wish to be my academic career. Let's see how does it go. I'm still quite a fresh here. Hope for best. Sir, at last I'm asking a last question to you. Please give some concluding remarks or some message to my students. That's a wonderful thing actually. That's kind of very calming. हमारे लोगों के लिए भी इतने सालों के बाद अगर इंटरव्यू देना या कोई करना काफ़ी थोड़ा सा टेंशन वाला ही काम होता है. इट्स वेरी इजी टू स्टैंड ऑन स्टेज एंड टीच. और जब आज के ज़माने में जैसे रिकॉर्डिंग है कि जो हर चीज़ कई बार रिपीट फॉरवर्ड करके पढ़ी जाती है, उस समय में रिकॉर्ड करके भेजना या बात करना थोड़ा सा तो टेंशन देता है. तो लास्ट क्वेश्चन है जिसके सिग्निफिकेंस से मुझे अच्छा लगा कि सर ने वाइंड अप किया. मैसेज देने के पहले मैं बच्चों को बोलूँगा अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा तो बियर विथ मी. मैंने पहले बोला था कि इफ इट इज लाइक फेस टू फेस टॉक, सो आई कुड हैव डन सम बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, सो यू वुड हैव एंजॉय. और मैं उसके लिए गारंटी से बोलता हूँ कि अगर मैं स्टेज पे खड़ा रहूँ तो आधे से 1 घंटा तो आप बोलोगे. लेकिन वीडियो कॉल मुझे पता है कि यूट्यूब पे इसके पहले आपने लेक्चर सुने होंगे और आधा घंटा किसी को बेयर करना इज लिटिल बिट डिफरेंट एंड डिफिकल्ट. पर चलो अच्छा है. मैसेज जो है मैं इतना करूँगा कि आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हाउ यू से यूर सेल्फ एंड योर आइडिया. कि आप अपने आप को, अपने हुनर को कैसे फंक्शनल या कैसे आप मार्केटिंग करते हो, कैसे एडवर्टाइज करते हो, वो इम्पोर्टेंट है. सेकंड चीज़ है कि आज के ज़माने में किसी और के साथ कंपटीशन करने की ज़रूरत ही नहीं. देखो कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको पता है कि 60-65% काफ़ी है. तो आफ्टर 65 यू एवरीवन विल बी इन वन क्यू. मैं नहीं बोल रहा कि 70-80% मत लो, 90 मत लो, लेकिन वो चीज़ रही नहीं. एक बैरियर है, मिनिमम क्राइटेरिया है. उसके बाद आपको पूरी दुनिया एक ही बार के अंदर देखी. अभी क्या मैटर करता है, हाउ यू एनहांस योर नॉलेज. आप खुद के लिए कैसे जीते हो, खुद का नॉलेज कैसे बढ़ाते हो, वो इम्पोर्टेंट. तो ट्राई करो कि आप जो भी चीज़ करो वो एक्सेलेंस हो, ना कि लोगों को दिखाने के लिए. इसके लिए आपको खुद जानने के लिए, ये आपको अच्छा लगे कि नहीं आज जो मैंने किया वो बेटर है. कल मैंने अगर 10 मिनट जिया होगा तो आज मैं 15 मिनट जिया. 24 घंटे आपकी ब्रीथ चालू है यानी हमें जीना नहीं. ठीक है, ये मैं नहीं मानता. अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है, खुद का नॉलेज बढ़ाया है, 2 चीज़ें काम की पड़ी है, अगर आज आप बढ़ा सक रहे हो, कोई भी रहे, नॉट ओनली इन सब्जेक्ट और एवरीथिंग, तो वो अच्छा है. देखो कोरोना ने इतना तो लोगों को बताया कि अगर आपको वो 6 महीने के लिए घर में बंद कर दिया है. आज जो बंदे, मैं खुद एवरी अप्स एंड डाउन होटल में जाके खाना खाता था वगैरह वगैरह, आज 6 महीना हो गया कुछ नहीं. तो वो तो है कि मनी एवरीथिंग इज जस्ट सेक ऑफ मैटर. लेकिन जो अगर आप एक्सेलेंस हो, जो खुद हो, उसको अगर बेटर करते हो तो आपकी लाइफ अगर पोर्ट्रेट अच्छे से हो. रिसेंटली मैं गोबले सर जो नागपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर करके फिजिक्स डिपार्टमेंट में,
उनको काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ अभी इन दिनों में। सभी जन बोल रहे, स्पेशली हमारे प्रोफेशन के लोग, कि लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी एकेडमिकली प्रोफेशनली काफ़ी लॉस हुआ। लेकिन मैंने उनको देखा कि उन्होंने काफ़ी हद तक पेटेंट्स, काफ़ी सारे पेटेंट बनाए, जो पेंडिंग काम थे वो किए। मेरे साथ उन्होंने खुद 3 बुक्स का प्रपोजल सबमिट किया। ऐसे कितने लोगों के साथ उन्होंने किए पता नहीं। उनके लिए तो ये रिसर्च करने के हिसाब से उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो वही चीज़ है कि जो सिचुएशन हो, अगर आपने उसको अपने हिसाब से अगर ढाले और अपने हिसाब से उसको एडॉप्शन करके अगर बेटर करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ, आपका सक्सेस डेफिनेटली अच्छा होगा। ये मत सोचो कि आज का दिन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, वो कुछ नहीं है। इफ़ यू फेल टुडे, तो अगर आपको आगे जाके सक्सेस करना है तो उठना पड़ेगा। इवन चलने के लिए आप पूरे प्लेन सरफेस में कभी नहीं चल सकते। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का, जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, जहाँ पे आप चल नहीं सकते, आपको पीछे फोर्स लगाना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ते हैं। तो जितना आपको आगे बढ़ना है उतना आपको पीछे फोर्स लगाने पड़ते हैं। अगर आज आप नीचे गिरे तो इसका मतलब है कल आप, भगवान ने या फिर आप जिसको भी बिलीव करते हैं, उन्होंने आपको चांस दिया है ऊपर उठने। तो वही एक मैटर दिमाग में रखो, पढ़ो अच्छे से, पॉजिटिवली लो, जितना कम सोशल मीडिया में रह सको उतना आपके करियर के लिए अच्छा है। बाकी कुछ नहीं, बाकी आप खूप बड़े हो गए हो, तुम्हाला तसे 2 शिंग फुटलेल्या, त्याला शार्प करा, एन्जॉय करा आणि ट्राई टू मेक युअर प्रोग्रेस। ऑल द बेस्ट फॉर ईच एंड एवरीवन। और अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए किसी भी मैटर में, feel free to contact me. Amit sir does have my contact details. You can take it from me. For now, thank you very much. Have a nice day. Thank you so much for giving us your valuable time and motivating my students. Thank you so much.